Hello students, as already I have sent you the basic concept of chapter number 15, the plant hormones. As far as the new syllabus was considered according to the CBSE, only the plant hormone were left in with chapter number 15, that is the plant growth and development. So let's begin our topic. First of all, we must know what is plant hormone. Plant hormone actually, the hormone, like in human beings, the hormones are necessary for the growth. So likewise in the plant hormones, they also help the plant in their particular activity, and in case of plant, the plant hormones were normally called as plant growth regulators, as they regulate the growth of an plant. ठीक है, जो भी प्लांट है उसके हॉर्मोन्स को, उसकी जो बॉडी ग्रोथ है, वेदर इट इज़ लेटरली, whether it is apically. Let us rewind. In class 9th, you have studied about 3 portions in a plant. Let us rewind it. The topmost portion is called as the apical part, in which apical meristrum is present. At the lateral area, where the girth, or we can say the diameter of a plant goes to be increased, this is called as lateral meristrum. And the part from where the branches arises, this is the point where the branch arises. Here a type of meristrum is present, that is called as intercalary meristrum. This is all about the location of the meristematic tissue, because the meristematic tissue are the main site where all the hormones are going to be most active. So basically the plant hormones are also called as phytohormones. Here the word phyto, if we distinguish this, the phyto word means plant and hormones means these are the chemicals that are secreted for the metabolic activities to maintain them. Now depending upon the category, it is not necessary that all hormones are beneficial to the plant. Some hormones are necessary to reduce the activity of the plant. So here are the list, total 5 plant hormones we have to study: auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. Out of which auxin, gibberellin and cytokinin, they were called as growth promoters because they promote the growth in an plant. Second one, the hormones like the abscisic acid and ethylene, these are called as inhibitor. In some cases ethylene is considered as inhibitor, but the most inhibitor of the plant growth is abscisic acid, called as ABA. It retard the growth of a plant. How it retard the growth? The positive effect of auxin, gibberellin, cytokinin and ethylene all were suppressed by the single growth hormone called as abscisic acid. Now about the discovery of the growth regulators, how the growth regulators were going to be discovered by the scientist, the biologist or someone, the colleagues of this person. So let's have a look. First of all, the discovery of this group all are have been to be accidental in cases. साइंस में कोई भी डिस्कवरी अचानक से होती है, कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, कुछ देखा, ठीक है। जैसे न्यूटन का आपको पता है कि व्हेन ही सेट बिलो एप्पल ट्री, सडनली द एप्पल फॉल एंड देन ही रिमाइंड आउट कि व्हाई द एप्पल फॉल डाउनवर्ड, व्हाई डजंट इट गो अपवर्ड. So all happen accidentally. So in this, the Francis Darwin in 1880, he observed the canary grass. The scientific name of canary grass is Phalaenopsis canerensis. A unilateral light. Unilateral means light coming in single direction. It fall on the tip of coleoptile. Now what is coleoptile? Let us have a look. This is a single germinating cell. जब हम एक सीड को शो करते हैं तो उसमें जर्मिनेट होके एक स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर अराइज करता है. तो उस प्लांट में अगर हमने एक ये, इफ वी कंसिडर a single seed, and this is the location where the shoot part is to be arised, and this is the root part which is to be arise in the future.
the covering that cover the shoot part in grasses, because the grasses were in the family called as monocot. They were in the category of monocot, and in monocot plant, because there is a single cotyledon, the shoot is covered with a particular point, and that particular point is what we called as a normally coleoptile. This is the shoot part and root part, and the covering that cover the shoot part from damaging, this is called as a coleoptile, which emerge out firstly before the shoot and converted the future shoot into the enlargement stem portion. Now, what happens in this particular, when the light falling from a single side, the stem, the coleoptile start bending. Then Francisci, what they done, they cut the portion, they cut the tip portion of the area from where the light is going to be fall. ठीक है, अब जब उसने ये एरिया जो है कट कर दिया, कोलेप्टोइड का जो टिप पोर्शन है, जब उसने कट कर दिया, उसके बाद व्हाट दे हैव डन, दे जस्ट इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर केमिकल हेयर, सपोज वी से इट्स अगार, ठीक है, और इट मे बी माइका. व्हेन दे इंट्रोड्यूस दिस वन, the light will fall, but the bending is not shown. That means at the tip portion, the portion that we have cut it down, here is some particular chemical that is responsible for this type of growth. Second one, the experiment having the same unilateral, further on it is followed by some other persons also. And this experiment, which is going to be proof that auxin is present on the tip of any plant, this is successful by a scientist called as Wendt. And Wendt is a main person who discovered about the discovery of auxin. What experiment he did is about the same. He studied the same portion, what this will going to be happen, and then this is the practical done by Wendt. Wendt used a substance, similar substance called as the gel that you were looking at, this art gel called as agar-agar block. Agar-agar is a chemically prepared substances which is made by from algae, and it is very nutritious substances and commonly used in the laboratory for the preparation of different type of solutions for especially in the growing medium, जो growing culturing हम लोग जो कराते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं. They cut the coleoptile region, this one. When they cut the coleoptile region, same shape and size, a small brick of agar gel they place on the tip of the coleoptile, and after some duration each piece was placed eccentrically on the cut. Eccentrically मतलब कि जो उसका exact center था उस पे नहीं डाला. If you look at this particular point, let have a zoom, ये देखिए इसमें यहाँ पे क्या किया उसने, टोटल सेंटर पे डाल रखा है, बट डू नॉट कवर द कंप्लीट एरिया, he left some area to be free. Now, what will happen? The characteristic bending, the same thing is bending in the darkness also. यानी कि this doesn't mean that is it responsible only for the light. The same thing of bending of the stem is going to be happening in the darkness also. That means it indicates that something is present, something is synthesizing on the apex part. At this apex part something is synthesizing and which is translocating downward. यानी कि यहाँ पे कुछ बन रहा है जो ट्रांसलोकेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है डाउनवर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टेम पोर्शन. And finally, when they study this in a very deep,
they finally discovered that at the tip of the portion a hormone called as auxin is present. Now, this is the discovery of auxin. Now, about the discovery of other hormone. This is another one experiment done by Boyson and Jensen. They were also have a great part in the discovery of auxin. Look at the experiment. They cut the same, the Boyle and Jensen, they use a plant called as oat for their experiment purposes. All they were used are monocot, because the study on the monocot is very easy as compared to the dicot plant. In the same experiment, what they have done is they cut the tip portion with a blade and place the same gap, fill it with the same agar gel block and one without agar gel block. If you are going to be study, if you look at the figure, the upper portion that I had named as C and D, these are without agar gel, and the portion with the block agar gel E and F, they were with agar gel, and this particular portion show bending in the same direction, but this also show bending, but its curvature, the development is little bit lesser than the previous one. Now, next what we are going to study is about the different hormones discovery. It is not necessary to go through the all, but it is important. Another one, Kolk and Hagel-Smith, they also isolate the same auxin hormone from the human urine. Next is Kogl, Exebel and Hagel-Smith, they obtain the auxin hormone type B, oxinolic acid, from the corn gem oil, and the obtain Kogl and Hagel, what they have obtained, this one the Kogl Hagel, they name the auxin as heteroauxin. What is the name as? Heteroauxin form, because it is formed in both as plant as well as in the animal form, that is why they name it. And heteroauxinol, it's occur in natural form, which is called as indole acetic, indole 3-acetic acid, commonly called as IAA, and this discovery is in 1935. Next one, about the discovery of another plant hormone called as the gibberellin. Another plant hormone, this is called as gibberellin. Gibberellin discovery in 1926 in the rice field. Why this was discovered in the rice field? This main fact is that the plant, or we can say the crop of rice, they were suffering from a particular disease called as Bacon disease, and the Bacon is a fungal disease, and which is identified as a name as Gibberella fujikori, and finally give the name called as gibberellic acid, because when Yabuta and Samuki, they isolate the chemical from the fungus. Which fungus? Gibberella fujikori, they name it as gibberellic acid. Then next, about the cell division. Cell division and factors, they were studied by Miller and Skook and their co-workers in 1955. They identify another one important hormone called as cytokinin. Cytokinin commonly found in plant by the naming called as kinetin and zeatin. These are the natural phenomena in which they were present, and small form of them were found in the crystalline form in DNA of sperm. Sperm is what we called as a male gamete. Okay, it is the male gamete. Zeatin is chemically known as 6,4-hydroxy-3-methyl-trans-2-butylene aminopurine, and this is obtained from the part of corn
zymase, the milky endosperm. Here the word, what do you mean by the term endosperm? Endosperm actually, if you have seen if you have seen a single corn seed, अगर मक्के का दाना आपने कभी ध्यान से देखा हो तो like this is the portion with a dark yellowish structure, and this portion is little bit having a small stick like structure. When we put a pressure at this particular point, this seed like structure is going to be out and a liquid fluid will release from this particular point, and that fluid is called as endosperm. Another one example we can take from the coconut. नारियल का पानी आप सब लोगों ने पी रखा होगा. नारियल का जो पानी होता है actually, this is the endosperm. And what is the main function of endosperm? Endosperm actually provide nourishment to the developing embryo. यानी कि जो फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. दिस इज द मेन इफेक्ट. द नेक्स्ट वन इज Kans and Adicon. Kans and Adicon, they discover abscissine, that is called as abscisic acid. Later on, because इसका जो function they have used is कि dormant could induce bud dormancy. इंड्यूस का मतलब वो बड डॉर्मेंसी की, अगर एक प्लांट के अंदर एक बड अराइज हो रखी है और उस बड को ग्रोथ करना है, बट ऑल एसेंशियल थिंग्स वर प्रेजेंट, बट द बड इज नॉट ओपनिंग टू कन्वर्ट into a beautiful flower, this is due to the abscisic acid. And same thing, the last hormone which is developed is ethylene. Ethylene is developed by the Berg in 1962. It is the only hormone that is present in the gaseous form, and basically it is a natural product that is used for ripening the fruit. Ripening of the fruit मतलब fruits को पकने के लिए, ठीक है. In the cold storage, the form of ethylene were used in the volatile form to mature the seed, to mature the fruits. हम उसको जो है basically use करते हैं. Now the location of auxin. Where is the occurrence and distribution of auxin? Auxin is universally present in all the plant. No plant is devoid of auxin. हर एक के अंदर auxin present होगी. एंड इट इज़ मोस्ट एक्टिव ग्रोथ, यानी कि प्लांट में जहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है, एक्टिव प्रोसेस है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी. मेरिस्टेमेटिक जो पॉइंट है दैट वी स्टडी इन द अर्लियर पार्ट, मेरिस्टेमेटिक पॉइंट पे होगा, चाहे वो शूट एपेक्स हो या फिर वो रूट एपेक्स हो, बट मोर कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट एट द शूट एपेक्स. एपिकल बर्ड्स जो होंगी, जो टिप पे अराइज होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होगा, सीड्स के अंदर प्रेजेंट होगा. उसके बाद नेक्स्ट इज ऑक्सिन ट्रांसलोकेशन. इसका ट्रांसलोकेशन जो होता है ये बेसिपिटल है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिपिटल? ये देखिए आप लोगों ने पहले भी किया है कि ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एंड गोइंग टू द डाउनवर्ड, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज बेसिपिटल, यानी कि एपिकल से लेके बेस डाउनवर्ड की तरफ ये रिमूव होता है. दिस इज द वेलोसिटी ट्रांसपोर्ट. यू कैन इमेजिन 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, वेरी लो कंसनट्रेशन जो है इसकी ये ट्रांसफ़र हो रही है. एज कम्पेयर टू रूट इट इज 0.1 to 0.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन बेसिकली दे वर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली एज वेल एज नेचुरली. नेचुरली वी हैव स्टडीज दैट इज IAA, इंडोल एसिड, ठीक है. एंड इन सम केसेस वी ऑल्सो स्टडी IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड ऑल्सो. एंड दिस वर सम अदर एग्जाम्पल: इंडोल propanic acid, indole butyric acid, naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and trichlorophenoxyacetic acid. These were the common example of auxin. Now what is the effect of auxin on plant growth and development? First one is apical dominance. Apical dominance means the plant का tip जो portion है, this is called as apical portion. This portion doesn't allow anything to grow from this particular part. दिस इज़ कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एक सुपीरियरिटी यहाँ पे वो अपनी रखता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ तो मेरे से ऊपर कुछ अराइज नहीं कर सकता. एनीथिंग वाज गोइंग टू बी अराइज, वो उससे नीचे की तरफ से अराइज होते हैं. एंड दिस वर कॉल्ड एज
लेटरल ब्रांचेस और इनके ऊपर जो बर्ड्स अराइज होती हैं दे वर कॉल्ड एज लेटरल बर्ड्स। एपिकल डोमिनेंस या टर्मिनल बर्ड जो होती है इसके अंदर बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं एंड दे आर वेरी एक्टिव ड्यू टू विच द लेटरल बर्ड्स दे रिमेन इनएक्टिव। इफ़ वी रिमूव द एपिकल बर्ड यानी कि उसको हम कट कर देंगे एपिकल बर्ड को, तो वहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है किसकी, ऑक्सीजन की, एंड दिस विल रिड्यूस द एपिकल बर्ड and promote the growth of lateral buds. Phototropism, in 10th standard you have studied that when a plant is bending toward the direction of sunlight, this is called as phototropism, but the bending is mainly due to the presence of oxygen hormone, because oxygen is a shade loving hormone. If the sunlight is coming from this direction, sunlight is coming from this particular direction, oxygen will appear to be concentrated in the backward direction. The next one is the same, geotropism. Geotropism is growth of a plant according to the earth gravity. As you all know that the plant root, they show positive geotropism because they were attracted toward the earth gravity, but the stem they show negative geotropism. इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये प्रमोट करती है ग्रेविटी को, अर्थ ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म को, तो इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो रूट्स में लिटिल बिट हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टेम पोर्शन, जिसके वजह से जो स्टेम है वो शो करती है नेगेटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म और जो रूट पोर्शन है वो शो करती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट इज अनदर इफेक्ट दैट रूट इनिशिएशन. इफ़ वी कट पार्ट ऑफ स्टेम, संभव आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्टेम कटिंग या स्टेम लेयरिंग का हम लोग फंडा यूज़ करते हैं कि इफ़ वी यूज़ अ सिंगल कटिंग ऑफ सिंगल कटिंग ऑफ रोज़ प्लांट. आपने देखा होगा रोज़ प्लांट को ग्रो करने का बहुत इजी मेथड होता है कि हम उसकी कटिंग ली हम लोगों ने, उसके ऊपर अपर एंड डाउन पोर्शन पे थोड़ा सा हम लोगों ने क्ले एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल का कंटेंट उसको ऐड किया, and after some time the roots start promoting at this particular portion. This all happened due to indole acetic acid. Abscission. Abscission means होता है कि प्लांट के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उनकी जो ग्रोथ होती है that is very fast and some portion where the growth is very slow. तो ये उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करता है जहाँ पे उसकी जो ग्रोथ होती है उसके कंटेंट बहुत हाई अगर होता है तो उससे अपोजिट जो पोर्शन होगा वहाँ पर ये रिड्यूस कर देगा. जैसे लीफ प्राइमोडियल अगर हम लोग बात करें, जब लीफ अराइज होती हैं तो इस तरीके से सबसे अंदर छोटी छोटी लीव्स होती हैं, बाहर ये लार्जर लीव्स होती हैं. तो लार्जर लीव्स क्या कर रही है, टिप पोर्शन पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इन लीव्स को सपोर्ट नहीं करता कि वो एक्सेस के अंदर एकदम से जो है ग्रो कर जाए. पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी जो है ये कॉन्सेप्ट होता है प्लांट्स के अंदर कि विदाउट फॉर्मिंग, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर आपको बात करें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स विल बी फॉर्म. फ्रूट्स बन जाते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती. दिस इज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है अपना बनाना. ऑल यू हैव सीन दैट देयर इज नो सीड प्रेजेंट इन द बनाना एंड बनाना इज अ रिजल्ट ऑफ पार्थिनोकार्पी. नेक्स्ट वन इज कैलस फॉर्मेशन. 10th स्टैंडर्ड के अंदर था आपका कैलस फॉर्मेशन, जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है इन द टर्म ऑफ टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन. ठीक है, जब हमने इसको स्टडी किया था माइक्रो प्रोपगेशन में तो इसके अंदर बेसिकली क्या था कि वी कट अ सिंगल सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप पार्ट. यहाँ से कट कर लिया, सपोज यहाँ से कर लिया या इस पोर्शन से कट कर लिया, एंड वी प्लेस दैट पर्टिकुलर पोर्शन इनटू अ पैट्री डिश. पैट्री डिश का होती है एक ग्लास की छोटी सी ट्रे होती है जिसके अंदर हम लोग इसको डालते हैं. उसमें जब हम इनको प्लेस करते हैं कटिंग सेल्स को, वी प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू देम, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू अ बंच ऑफ सेल which is undifferentiated. This is called as a callus. If we provide them particular growth hormones for root, stem, they will start arising in this particular portions. Sex expression. That means if oxygen is introduced in some cases, if oxygen
ऑक्सीजन अमाउंट इज वेरी हायर, देन amount of, or we can say number of female plant is more as compared to the other part. Okay, then next one what we are going to study about the gibberellin hormone. Gibberellin hormone, it is basically synthesized in the young leaves and also inside the plastid of immature seed or even the roots, यानी कि plastid जो है उनके अंदर ये synthesize होगा and it is active in the formation of a coenzyme called as acetyl-CoA. इसको हम जो है coenzyme को CoA भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं. What are the physiological effect? It help in effect of internodal elongation. इंटरनोडल इलांगेशन का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जो शुगर केन होता है उसके अंदर इस तरीके से पोर्शंस बने होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज नोड पोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोडल पोर्शन. दिस इंटरनोडल पोर्शन इनको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, यानी कि ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं इनकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा जिबरलिन हार्मोन. सीड के अंदर जो जर्मिनेशन है उसके अंदर डॉर्मेंसी जो कंडीशन होती है, यानी कि सीड को सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है हमने, एवरीथिंग इज प्रोवाइड बट द सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग. दिस जर्मिनेशन इज ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ जिबरलिन हार्मोन. इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट. आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे जैसे फ्लावर है, रफेलशिया जो फ्लावर है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है, तो ये फ्लावर्स का साइज जो इंक्रीज होता है दिस इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ जिबरलिन हार्मोन कॉल्ड एज G4A एंड GA7. जो जिबरलिन हार्मोन है ये G1 से लेके GA12 डिफरेंट टाइप्स में हमें मिलता है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हमें मिलता है. तो इसका जो एग्जाम्पल है दोनों का कॉम्बिनेशन का, इसको हम लोग लिखते हैं पोमेलिन एंड विच इज़ इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एप्पल. प्रमोट मेलनेस, यानी कि मेल जो है उनकी अमाउंट को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर. अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फीमेल बनते हैं और अगर जिबरलिन ज़्यादा है तो मेल प्लांट बनेंगे. प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को. लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? इफ़ 10 आवर सनलाइट इज देयर एंड एनी प्लांट रिक्वायर अ सनलाइट ड्यूरेशन more than 10 hours for its proper germination, this is called as a long day plant, and it is required less than 10 hours then it is called as a short day plant according to the duration of sunlight. Pollen tube, जब pollen grain fall करता है in the on the stigma of a flower, उस टाइम पे जो मेल गैमीट है वो अपने गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज द pollen tube, and it introduce the hydrolytic enzyme which are essential for the formation of endosperm. ये इसमें अल्फा एमाइलेज हार्मोन जो है उसको ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं. बारले के अंदर जो उसकी स्वीटनेस है, जो माल्ट प्रोडक्शन हम लोग करवाते हैं फॉर द बेवरेजेस, उसके लिए GA3 रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कि प्लांट के अंदर जो इरेक्टेबिलिटी है, यानी कि एक होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, जो अपने आप को तिरछा खड़े करके रख सकते हैं इस तरीके से, तो स्ट्रेट प्लांट हो गया एंड दिस इज द स्लांटिंग वे. दिस इज ड्यू टू ऑल्सो जिबरलिन. मेन इज ब्लॉटिंग. व्हाट इज ब्लॉटिंग? इट इज द स्टिमुलेशन टू इंक्रीज द इंटरनोडल एरिया. लुक एट दिस फिगर. इस फिगर में अगर आप लोग देखें, दिस फर्स्ट फिगर इज़ नॉट ट्रीटेड विद जिबरलिन. इसमें जो नोडल एरिया है वो रिड्यूस हो गया है एंड दिस लीव्स दे वर कलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक बंच बन गया उनका. एंड व्हेन जिबरलिन इज इंट्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर प्लांट देन द इंटरनोडल एरिया, ये देखिए इंटरनोडल एरिया क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया एंड द लीव्स वर गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट. देन नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन एज मैंशन अर्लियर, इसकी जो मेन फॉर्म है वो कौन सा आता है हमारे लिए, जो मेन फॉर्म है वो हमारे लिए है कौन सा, काइटिन. इट इज़ अ मेन फॉर्म काइटिन, जिसमें हम इसको जो है यूज़ करते हैं. इसके जो फॉर्म्स हैं मॉडिफाई करके वो एडिनाइन, एंड एडिनाइन जो है ये हमारे DNA का भी पार्ट है, ये हमारे RNA का भी पार्ट होता है, ठीक है. काइटिन जो है ये नेचुरली प्लांट में अकर नहीं करता बट इट हैज़ टू बी आइसोलेटेड.
ठीक है। तो आइसोलेशन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एज मेंशन अर्लियर, ज़िएटीन का। और 18 जो साइटोकाइनिन्स हैं वो प्लांट के अंदर डिस्कवर हो रखे हैं हमारे येट नाउ टिल डेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अबाउट द फंक्शन, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कि सेल एनलार्जमेंट कराता है, मॉर्फोजेनेसिस करवाता है। व्हाट इज़ मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि एक प्लांट का ये सेल है, वेदर द सेल हैज़ गोन टू बी पार्ट ऑफ अ स्टेम, रूट और लीफ, ये जो डिफ्रेंसिएशन होनी है दिस इज़ ड्यू टू द साइटोकाइनिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, तो ये एक और मेन इफेक्ट हमारा आता है रिचर्ड-लैंग इफेक्ट। इट इज़ द डिले इन द सीनेसेंस, यानी कि एजिंग, जो प्लांट होता है उसकी एजिंग हो जाती है। एजिंग का मतलब कि प्लांट बूढ़ा होने लग रहा है, उसकी एज डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, तो वो जो इफेक्ट है उसको डिले करना, रिड्यूस करना, दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू साइटोकाइनिन। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। इसके बाद इंफ्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंफ्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब कि इस तरीके से अगर जैसे जैसे हमारा जो सेल का साइज़ है वो प्लांट का साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कैम्बियम जो है, यानी कि ग्रोइंग जो एरियाज़ होते हैं जहाँ से हमारे न्यू सेल्स अराइज होते हैं, वो सेल्स ग्रो करते हैं, तो उसको ये प्रमोट करता है ग्रोथ के लिए। It also introduce the parthenogarpy and increase the rate of protein photosynthesis in particular plants. उसके बाद ये देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल, ये फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है साइटोकाइनिन की, और इसकी रेशो शो कर रखी है यहाँ पे। ये देखिए कैलस जो है ये कंट्रोल मेथड में है, इसके अंदर हम लोगों ने जो साइटोकाइनिन है उसकी रेशो हाई कर दी, ऑक्सिन की रेशो हमने क्या कर दी इसके अंदर लेस कर दी। सेकेंड वन में देखिए इसमें आप एक्चुअली यू हैव टू सी द डिफरेंस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द ग्रोथ। इस पर्टिकुलर प्लांट ने हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट में हमने साइटोकाइनिन को क्या कर दिया, लो कर दिया, ऑक्सिन को हाई कर दिया इन द रूट कंटेंट। तो रूट की ग्रोथ देखिए कितनी फास्ट हो रही है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मीन्स ना तो हमने हाई करी ना लो करी, तो दोनों की जो ग्रोथ है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल प्रोपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन इज द सिंगल वन बेसिक gaseous hormone, help in ripening of fruit and it is responsible for the senescence, यानी कि प्लांट की एजिंग कॉज करवाता है। इथाइलिन जो है इट इज़ बेसिकली सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड मिथेनोइन एंड मोस्ट वाइड सोर्स जो है ये इसका होता है हमारा इथेफोन, ठीक है। इथेफोन जो है ये एक्वस सोल्यूशन होता है जो प्लांट बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके यूजेस अगर हम लोग देखें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है प्लांट के ऊपर, फ्रूट राइपनिंग, सीनेसेंस को प्रमोट करता है, जो फॉल है लीफ का, फ्लावर का, यानी कि मैच्योर होने के बाद जो प्लांट के रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, उनका शट डाउन करना उसमें हेल्प कराता है। रूट एंड शूट की ग्रोथ, हेयर फॉल, उनके जो हेयर फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करवाता है। इनिशिएशन करवाता है इन सम प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल एंड मैंगो के अंदर, ब्रेक डाउन करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी, बैंडिंग ऑफ लीफ, यानी कि जो लीफ है अगर एक लीफ बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर वो लीफ धीरे धीरे इस तरीके से कर्लिंग शो करना स्टार्ट कर देती है, दिस इज़ ड्यू टू इथाइलिन हार्मोन। एंड द लास्ट वन इज द एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एज वी ऑल नो इट इज़ अ वेरी मल्टी रोल किस लिए, बिकॉज इट इज़ अ पावरफुल ग्रोथ इनहिबिटर। यानी कि अब तक हमने जितने भी हार्मोन पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, उनके इफ़ेक्ट को, जो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो करते हैं उसको रिड्यूस कर देना, दिस इज़ द मेन इफ़ेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो मेन इट इज़ एक्ट एज अ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर करता है, प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करेगा। एब्सिशन यानी कि लीफ को फॉल करना, फ्लावर को बिफोर मैच्योरेशन रिड्यूस कर देना, ये इसका इफ़ेक्ट है। सीड की जर्मिनेशन को रिड्यूस करेगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज इट इफेक्ट द पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन, पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन को इफेक्ट करेगा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 11। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, मैच्योरेशन के अंदर एंड एज वेल एज इन द डॉर्मेंसी। माइटोसिस जो है वस्कुलर कैम्बियम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा।
सीनेसेंस को करवाएगा एंड जर्मिनेशन ऑफ सीरियल जो प्लांट्स हैं उनकी जो इनिबिशन रिड्यूस उसको भी जो है ये रिड्यूस करता है। अगर फाइनली हम बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो है ये रिड्यूस कर देता है प्लांट की सभी ग्रोथ को, ठीक है। नाउअडेज सम अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स वर ऑल्सो देयर। अगर हम उनकी बात करें तो इसके अंदर एक हमारा नेम आता है मॉर्फेक्टिन्स। मॉर्फेक्टिन्स जो हैं बेसिकली दीज आर ग्रोथ हार्मोन्स एंड दे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द सीडलिंग। अगर हम सीडलिंग ग्रो करवाते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। सीड स्टेम इलोंगेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं एंड फॉर द मोस्ट एक्टिव GA3 जिबरलिन को जो है एक्टिव करवाने के लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड वन अगर हम लोग बात करें, सेकेंड वन इज ब्रासिनोस्टीरॉइड्स। ब्रासिनोस्टीरॉइड्स जो हैं दीज आर बेसिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करवाते हैं, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें एक और हमारा आता है जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड। This jasmonic acid is basically promote the plant to form a particular amino acid called as linolenic acid। ये लिनोनिक एसिड को प्रमोट करता है, ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प अ प्लांट टू फॉर्म द टेंड्रिल कॉइलिंग। यानी कि एक जो प्लांट है अगर हम बात करें उस प्लांट के अंदर किस तरीके से एक स्टेम है उसमें ये लीफ पोर्शन अराइज हो रहा है उसका, और लीफ अगर इस तरीके से कॉइलिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं तो उसकी प्रमोशन के अंदर ये हेल्प करवा लेता है। एंड द लास्ट वन इन दिस कैटेगरी इज सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड्स दे वर बेसिकली हेल्प इन द पाथवे। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस चलते हैं प्लांट के अंदर उन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करवाने में ये हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द साइड ऑफ प्लांट हार्मोन। सो गो ऑन स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।